اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نماز کے موضوع میں واجبات نماز میں آج ہم پڑھیں گے کہ واجبات نماز کیا ہیں، کتنے ہیں اور ان کے کیا احکامات ہیں۔ قرآن نماز کا موضوع کیونکہ بہت دقیق اور بہت ایک طولانی موضوع ہے، تو کوشش یہ کروں گی کہ انشاءاللہ مختصر انداز میں جس کے اہم نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ سب سے پہلے اس میں واجبات نماز یعنی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں قیام، رکوع، سجود، یہ سب کچھ واجبات نماز میں سے ہے۔ تو جو واجبات نماز ہیں وہ 11 ہیں، جن میں کچھ رکن ہیں اور کچھ غیر رکن ہیں۔ یہ بھی واجب، رکن بھی واجب ہے، غیر رکن بھی واجب ہے، لیکن تھوڑا ان کے حکم میں فرق ہے کہ جو نیچے میں قاعدہ انشاءاللہ بیان کروں گی تو آپ کے لیے وضاحت ہو جائے گی کہ ہم اس کو کیوں تقسیم کرتے ہیں رکن اور غیر رکن میں، جبکہ رکن بھی واجبات نماز ہے اور غیر رکن بھی واجبات نماز ہے، تو یہ کل 11 ہے۔ صحیح، سب سے پہلے رکن کی بات کرتے ہیں۔ 5 رکن ہیں، 11 میں سے 5 رکن ہے۔ سب سے پہلی نیت، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کون سی نماز ہے، قربتاً اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ نیت جو ہے یہ رکن ہے۔ اور نیت میں ضروری نہیں ہے کہ زبان سے نیت کی جائے، دل میں دہرائی جائے، ہمارا وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہونا ہی ہماری نیت ہے۔ مطلب ہم اٹھے ہیں فجر کی نماز کے لیے، وضو کیا مصلی پہ کھڑے، جی کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ ہم فجر کی نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ ارادہ، یہ قصد، یہ اٹھنا، وضو کرنا، مصلی پر کھڑے ہونا، اللہ اکبر کہنا، یہ سب ہمارا ارادہ ہی اصل نیت ہے۔ تو اس کو زبان سے کہنا ضروری نہیں کہ میں نیت کرتی ہوں مثلا 2 رکعت نماز فجر قربتاً اللہ، کرنے میں حرج نہیں، اگر کوئی کرنا چاہے کر لے، لیکن نہ بھی کرے تو نماز باطل نہیں ہے۔ ہاں اسے کہیں گے کہ نیت نہیں کی، کہ جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، جی کیا کر رہے ہو، پتہ نہیں کون سی نماز پڑھا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کہیں گے اس کی نیت صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ لیکن اس نے اگرچہ کہ منہ سے نہیں کہا، زبان سے نہیں دہرایا، لیکن اگر آپ پوچھے بھی آپ کیا کر رہے ہو، وہ کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہی ارادہ جو ہے، یہی قصد جو ہے، یہی آپ کا جو علم ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہو، یہی نیت کہلاتی ہے۔ زبان سے دہرانا یا دل میں دہرانا ضروری نہیں ہے۔ پہلے ہوگی نیت، دوسری تکبیرۃ الاحرام۔ سب سے پہلی تکبیر جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ تکبیرۃ الاحرام، یہ واجب ہے اور رکن ہے۔ تیسرا قیام، یہ واجب ہے، رکن ہے۔ قیام کی 4 قسمیں ہیں کہ میں بھی بیان کرتی ہوں۔ چوتھا رکوع واجب ہے اور رکن ہے، اور 5ویں سجود واجب ہے اور رکن ہے۔ یہ 5 چیزیں واجب رکن ہیں، واجب رکن ہیں۔ 6 چیزیں واجب غیر رکن ہیں، 6 چیزیں واجب غیر رکن ہے، واجب یہ نہیں کہ واجب نہیں ہے، واجبات نماز میں سے لیکن غیر رکن ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ میں نیچے قاعدے میں بتاؤں گی کہ ہم نے کیوں اس کو رکن اور غیر رکن میں تقسیم کیا اور اس تقسیم کا کیا فائدہ ہے یہ بھی واجب اور یہ بھی واجبات نماز۔ صحیح، غیر رکن میں سب سے پہلا قراءت ہے۔ قراءت کیا، یعنی کہ جو ہم الحمد سورت کی تلاوت کرتے ہیں، تیسری رکعت میں تسبیحات 4 پڑھتے ہیں یا صرف الحمد پڑھی جا سکتی ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح، اسے کہتے ہیں قراءت۔ پہلی چیز واجب غیر رکن قراءت ہے۔ دوسرا ذکر، ذکر کون سا ہے، جو رکوع اور سجود کے ذکر ہے، رکوع میں جو ہم ذکر پڑھتے ہیں اور سجدوں میں ہم ذکر پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذکر، اور یہ واجب غیر رکن ہے۔ تیسرا تشہد جو ہم پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں۔ چوتھا سلام جو ہم پڑھتے ہیں تشہد کے بعد۔ 5واں ترتیب، جو ہم جس ترتیب سے نماز پڑھتے ہیں، پہلے قیام کر کے ہم نے نیت کی، اللہ اکبر کا، الحمد پڑھی، سورت، پھر رکوع، پھر سیدھے کھڑے ہوئے، پھر پہلا سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، یہ جو ترتیب ہے یہ بھی واجب ہے اور لیکن غیر رکن ہے لیکن واجب ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سے پہلے ہم سورت پڑھ لیں، صحیح، رکوع سے پہلے ہم سجدہ کر لیں، سلام سے پہلے تشہد پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ترتیب سے نماز پڑھنے جس ترتیب سے بتائی گئی ہے، ہاں، لیکن یہ واجب غیر رکن ہے کہ نیچے میں بتاؤں گی کہ کیا فرق ہے اس کے واجب غیر رکن ہونے کا۔ صحیح، تو ترتیب ضروری ہے نماز میں کہ ترتیب سے نماز پڑھی جائے، پہلے نیت، پھر تکبیرۃ الاحرام، پھر الحمد، سورت، رکوع، پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ، یہ سب ترتیب سے نماز کو پڑھا جائے۔ چھٹا جو واجب ہے غیر رکن، اصل میں تو 11 بنتا ہے اگر ہم ان 5 کو بھی ڈالیں، لیکن غیر رکن کے نام سے چھٹا ہے موالات۔
मवालात क्या, यानी पैर दर पे नमाज के अफ़ाल को अंजाम देना। ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पढ़ी है, खड़े सोच रहे 5 मिनट बाद हम रुकू में चले गए, फिर खड़े हैं, फिर 5 मिनट बाद हम सजदे में चले गए, ऐसा नहीं है, बल्कि पैर दर पे नमाज के अफ़ाल को अंजाम देना चाहिए। इसे कहते हैं मवालात, यानी अलहम्द पढ़ी, बेशक आप आराम के ठहर के पढ़े, आराम से पढ़े, फिर आप सूरत पढ़े, उसके बाद फिर रुकू करना है, लेकिन चुप करके खड़े हैं, उससे मवालात खत्म हो जाएगी और नमाज बातिल हो जाएगी। सही, तो ये वाजिब गैर रुकन है। तो कुल 11 हो गए, 5 रुकन है और 6 गैर रुकन है, 5 और 6 कुल 11 वाजिबाते नमाज है, कुल 11 है वाजिबाते नमाज, 11। सही। अच्छा, अब कयाम की थोड़ी सी बात कर लूं कि कयाम 4 तरह का है। हम नमाज में 4 तरह के कयाम करते हैं, 4 वक्त में, 4 चीजों के वक्त हम कयाम करते हैं। एक पहला कयाम जब हम तकबीरतुल इहराम कहते हैं तो हम खड़े होके कहते हैं, बैठे तकबीर नहीं हो सकती, हम खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद हम अल्लाह अकबर जो कहते हैं, तो तकबीरतुल इहराम के वक्त कयाम होता है। फिर एक कयाम होता है रुकू से पहले, दरअसल तकबीरतुल इहराम के वक्त कयाम, उसके बाद किरात के वक्त भी कयाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत कहते वक्त हम बैठ नहीं जाते, यानी कि हमने तकबीर कही फिर हम बैठ जाए, पहले अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पढ़े फिर खड़े और रुकू करें, नहीं, तकबीर के वक्त कयाम और किरात का कयाम। दरअसल मैंने इसलिए इसको इस तरतीब से नहीं लिखा क्योंकि कयाम असल में 2 तरह का है। इन 4 कयामों में से 2 रुकन है और 2 गैर रुकन है, तो मैंने रुकन को अलग किया है, गैर रुकन को अलग किया है। यानी नमाज में हम 4 वक्त में कयाम करते हैं, उन 4 वक्त में 2 रुकन है और 2 गैर रुकन है। सही, तो इसलिए मैंने रुकन को अलग करके लिखा है और गैर रुकन को अलग करके लिखा है। अब कयाम में जो 4 वक्त में कयाम करते हैं 2 रुकन है। पहला कयाम मैंने आपको बताया कौन सा, जो हम अल्लाह अकबर नमाज शुरू करते हैं, जब तकबीरतुल इहराम कहते हैं उस वक्त कयाम रुकन है। सही। दूसरा कयाम जो कि रुकन है वो है क़याम मुत्तसिल बेरुकू, यानी जब इंसान नमाज में रुकू के लिए जाए तो वह कयाम की हालत में हो, कयाम की हालत से रुकू में जाए। बस अगर मिसाल के तौर पर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पढ़ी और उसके बाद वो बैठ गया, बैठने के बाद वो खड़ा हुआ कि जी मैंने रुकू नहीं किया, और खड़ा होते होते ही रुकू में चला गया, तो उसने क़याम मुत्तसिल बेरुकू को छोड़ दिया है, उसकी नमाज बातिल है। रुकू में जाने से पहले इंसान सीधा खड़ा हुआ हो और उसके बाद रुकू में जाए। अब इसमें क़याम मुत्तसिल बेरुकू तकरीबन हम लोग अंजाम देते हैं, क्योंकि हम जब अल्हम्द और सूरत पढ़ते हैं तो हम खड़े हुए होते हैं, क़याम की हालत में अल्हम्द और सूरत पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम रुकू में जाते हैं, तो यानी हम क़याम की हालत से रुकू में जाते हैं। लेकिन बाज लोग अल्हम्द और सूरत पढ़ते पढ़ते रुकू में चले जाते हैं, वो क़याम मुत्तसिल बेरुकू तो कर लेते हैं क्योंकि क़याम की हालत से रुकू में जा रहे हैं, लेकिन हरकत में नमाज पढ़ते हुए नमाज बातिल है। हरकत की हालत में हम जिक्र नहीं पढ़ सकते, न वाजिब न मुस्तहब। तो बस जब हम अल्हम्द सूरत पढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि अल्हम्द सूरत को मुकम्मल करें, उसके बाद अल्लाह अकबर कहें और उसके बाद रुकू में जाएं। बस जो लोग सूरत पढ़ते पढ़ते रुकू में चले जाते हैं उनकी नमाज बातिल है। अल्हम्द सूरत पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कहें, बदन सुकून की हालत में है और उसके बाद रुकू में जाएं। तो ये कयाम जो रुकू से पहले है ये कयाम रुकन है, ये कयाम रुकन है। बस अगर कोई रुकू भूल जाता है और अल्हम्द सूरत के बाद बैठ जाता है तो वो जब उसको याद आता है कि मैंने रुकू नहीं किया तो वो उठते उठते रुकू में ना जाए, बल्कि वो पहले सीधा खड़ा हो ताकि वो क़याम मुत्तसिल बेरुकू को अंजाम दे सके और उसके बाद वो रुकू में जाए। यानी वो कयाम जो रुकू से मुत्तसिल है, इंसान कयाम की हालत से रुकू में जाए। सही। तो ये 2 कयाम है। कयाम मैंने आपको कहा 4 किस्म के कयाम है, 2 कयाम रुकन है। कौन से 2 कयाम रुकन है? तकबीरतुल इहराम के वक्त कयाम और दूसरा रुकू से पहले कयाम। अब 2 कयाम गैर रुकन है, 2 कयाम गैर रुकन है। वो कौन सा है? किराअत के वक्त कयाम, जो हम अल्हम्द सूरत के वक्त कयाम पढ़ते हैं ना, कयाम खड़े होकर पढ़ते हैं अल्हम्द सूरत, वो वाला कयाम गैर रुकन है। ये नहीं कि वाजिब नहीं है, ये ना समझे कि वाजिब है लेकिन गैर रुकन है। मैं इसलिए आपको भी बार बार कह रही हूँ कि जब नीचे ये कायदा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रुकन और गैर रुकन में क्यों बार बार कह रही हूँ। वइल्ला है वाजिब है, किरात के वक्त खड़ा होना वाजिब है। सही। उसके बाद दूसरा कयाम गैर रुकन कौन सा है? रुकू के बाद सीधा खड़ा होना। यानी ऐसा नहीं कि हम रुकू से उठते उठते ही सजदे में चले जाए, नमाज बातिल है, नहीं।
रुकू के बाद सीधा खड़ा होते हैं, मुस्तहब है कि क्या कहा जाए, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। सही। तो रुकू के बाद का क़याम, ये दो क़याम गैर रुकन है, वाजिब है लेकिन गैर रुकन है। तो क़याम चार तरह के हो गए, दो रुकन है, दो गैर रुकन है। रुकन कौन सा है, तकबीरतुल इहराम के वक्त क़याम और रुकू से पहले क़याम। और गैर रुकन कौन सा है, क़िराअत के वक्त क़याम और रुकू के बाद क़याम, रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, ये वाला क़याम वाजिब गैर रुकन है। सही। और रुकन में थोड़ी सी वजाहत सजूद में आपको कर दूं कि जो सजूद है वो जो रुकन है वो किस तरह रुकन बनते हैं, जब एक रकत के दो सजदे आपस में मिल जाए तो वो एक रुकन बनते हैं। एक रकत के दो सजदे मिलकर आपस में रुकन बनते हैं। एक रकत का एक सजदा रुकन नहीं कहलाता, एक रकत का एक सजदा रुकन नहीं कहलाता। अभी मैं नीचे कायदा जब ये पढ़ूंगी तो आपको समझ आएगी कि एक सजदे और दो सजदे में क्या फर्क है। एक सजदा रुकन नहीं कहलाता, एक रकत के दो सजदे मिलकर एक रुकन बनते हैं। एक रकत के दो सजदे, एक रकत में दो सजदे होते हैं ना, वो दो सजदे मिलकर रुकन बनते हैं। एक सजदा रुकन के हुक्म में नहीं आता, वो गैर रुकन के हुक्म में आता है। और इसमें क्या फर्क है ये अभी हम इस कायदे में बयान करते हैं। सही। तो कायदा नंबर 1 देखिए, नमाज के कायदे हैं, अगरचे कि मैं अहकाम में पीछे कायदतुल फराग का भी जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन हम नमाज के कायदों को नंबरिंग से, तरतीब से दोबारा से करेंगे। तो नमाज के कायदों में कायदा नंबर 1, अगर वाजिबात नमाज में कमी या इजाफा कर दे, हमने वाजिबात नमाज पढ़ ली, 5 रुकन पढ़ लिए, 6 गैर रुकन पढ़ लिए, इनमें अगर कोई कमी या इजाफा कर दे, ये पहला कायदा होगा हमारा नमाज का। इन नमाज के कायदों को हम अलग तरतीब से करेंगे। सही। अगर वाजिबात नमाज में कमी या इजाफा कर दे, दो सूरतें, जानबूझकर उसने कमी या इजाफा किया है या भूले से गलती से कर दिया, जानबूझ के नहीं किया। सही। अगर तो उसने जानबूझकर कमी या इजाफा किया है वाजिबात नमाज में, अब चाहे रुकन में किया है चाहे गैर रुकन में किया है, लेकिन जानबूझ के या कमी कर दी है या इजाफा कर दिया है, यानी अलहम्द नहीं पढ़ी या जानबूझकर 2 दफा अलहम्द पढ़ी है। सही। या जो है मसलन तशहुद 2 दफा जानबूझ के पढ़ी है, या तशहुद पढ़ी ही नहीं। सही। या रकू 2 कर दिया या रकू किया ही नहीं। सही। इसी तरह सजदों में इजाफा कर दिया। तो अगर जानबूझकर वो नमाज में कमी या इजाफा करे तो नमाज क्या है, बातिल है। अब इसमें कोई फर्क नहीं, चाहे वो रुकन हो चाहे वो गैर रुकन हो। हाँ, अगर भूले से गलती से कर दे, अब आके सारा फर्क अलग अलग होगा रुकन और गैर रुकन का। अब आके बात समझ आएगी कि क्यों वाजिबात नमाज में रुकन को अलग किया गया, गैर रुकन को अलग किया गया है। क्योंकि अगर भूले से या गलती से कमी या इजाफा करे वाजिबात नमाज में, तो अगर गैर रुकन है तो नमाज सही है, अगर रुकन है तो नमाज बातिल है। सही। अगर गैर रुकन, अब आप जब अपने जहन में इस पूरे कायदे को दौड़ाओगे और एक एक चीज को इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको समझ आएगी कि क्या फर्क है रुकन और गैर रुकन में। कब, जब उससे गलती से ये काम, उसने जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर कमी या जानबूझकर इजाफा नहीं किया, भूले से इजाफा हो गया, लेकिन रुकन में फिर भी नमाज बातिल है, चाहे भूले से ही उससे कमी या इजाफा हुआ है। लेकिन गैर रुकन में क्या है, नमाज सही है। अब देखें गैर रुकन में क्या है, नमाज सही है, और रुकन, अगर रुकन हो गलती से भी कमी कर दे, भूले से भी कमी कर दे, नमाज क्या है, बातिल है। इसी तरह अगर रुकू में या एक ही रकत के 2 सजदों में इजाफा कर दे, 2 सजदों में इजाफा कर दे, तो एहतियात लाजिम की बिना पर नमाज बातिल है। देखें, पहले मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं कि कमी का सीधा उन्होंने कह दिया कि गलती से भी कमी करे, रुकन में नियत भूल जाए, तवक्कुल इहराम न करे, क़याम भूल जाए, रकू ना करे, सुजूद ना करे, गलती से भी कमी करे तो नमाज क्या है, बातिल है। लेकिन इजाफे में 2 चीजों का जिक्र किया, एक रुकू का जिक्र किया है और दूसरा एक ही रकत के 2 सजदों का जिक्र किया है। सही। अब देखे, क्योंकि नियत का कोई इजाफा नहीं होता, क़याम का कोई इजाफा नहीं होता, और तकबीरतुल इहराम जो है उसमें अगर किसी ने 2 मरतबा कह दी है और फिर वो मतवज्जो हो गया, बस उसको छोड़ेगा, फिर तकबीर कह नमाज शुरू कर ले, तो यानी इन 3 चीजों को निकाल के असल जो इजाफा होता है रुकन में असल जो इजाफा होता है वो या रुकू में इजाफा होता है या एक ही रकत के 2 सजदों में इजाफा होता है। और अगर ये इजाफा वो जानबूझ के करता है, भूले से करता है, बात भूले से हो रही, जानबूझ की नहीं हो रही, बात भूले से हो रही, भूले से भी अगर इनमें इजाफा कर दे तो नमाज क्या हो गई, बातिल हो गई। सही।
अब मैं दोबारा रिपीट करूं कि अगर भूले से उसने कमी या ज्यादती की है, किसमें? रुकन, भूले से, गलती से, फिर भी कमी से भी नमाज बातिल है और इजाफे से भी नमाज बातिल है। इजाफे में इजाफा कौन सा आएगा? क्योंकि नियत का तो इजाफा नहीं हो सकता, कयाम का तो इजाफा नहीं हो सकता। तकबीरतुल इहराम का हमने कह दिया कि उसने गलती से 2 तकबीर कह दी, फिर उसको याद है मैंने 2 दफा कह दिया, छोड़े, अब 3री मरतबा तकबीर के नमाज शुरू कर दे। तो असल इजाफे में क्या आता है? रुकू आ जाता है और सुजूद। इनमें इजाफा करने से नमाज एहतियात की बिना पर बातिल हो जाएगी। अब जो मैं आपको बात सगत कह रही थी कि एक रकत के 2 सजदे मिलकर रुकन बनते हैं। एक रकत के 2 सजदे मिलकर रुकन बनते हैं। क्या मतलब? देखिए, तवज्जो करने का आराम। अगर उसने गलती से, क्योंकि हमने कहा ना गलती से रुकन में ज्यादती और कमी नमाज में क्या करती है? बातिल करती है, चाहे गलती से। अगर उसने गलती से एक रकत के 1 सजदे को कम किया, दोनों सजदे कम नहीं किए, गलती से उससे 1 सजदा छूटा है, 1 सजदा उसने कर लिया, 1 सजदा उससे गलती से भूले से छूट गया। अब क्या उससे रुकन छूटा है? नहीं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि 2 सजदे मिलकर रुकन बनते। अगर दोनों सजदे गलती से छूट जाते तो हम कहते हैं रुकन छूट गया। अब 2 सजदे से नहीं छूटे, 1 सजदा गलती से छूटा है, तो यही मैंने आपको अर्ज किया कि एक रकत के 2 सजदे मिलकर रुकन बनते हैं। क्योंकि गलती से एक रकत का 1 सजदा छूटा है तो हम नहीं कहेंगे कि उसकी नमाज बातिल है, रुकन छूट गए। जो ने ये कायदा पढ़ा कि जो है वो गलती, कमी या ज्यादती से नमाज बातिल है, क्योंकि उससे एक रकत के 2 सजदे नहीं छूटे और 2 रुकन जो है वो एक रकत 2 सजदे मिलकर रुकन बनते हैं, उससे 1 सजदा छूटा तो नमाज बातिल नहीं। इस तरह अगर इजाफा हो जाए, एक रकत में गलती से वो 3 सजदे कर दे, 2 की बजाय 3 सजदे कर दे, क्या उसने रुकन का इजाफा किया है? रुकन का इजाफा कब होता? जब एक ही रकत में 2 सजदों का इजाफा कर देती। एक ही रकत में 2 सजदों का इजाफा कर देती, हम कहते हैं अब इसने रुकन का इजाफा कर दिया। बस यही अर्ज करना चाह रही हूँ कि एक रकत में 2 सजदे मिलकर रुकन बनते हैं। अगर एक रकत में 2 सजदों को छोड़ दे या एक रकत में 2 सजदों को ज्यादा कर दे तो हम कहेंगे रुकन की कमी और ज्यादती की है, नमाज बातिल है, चाहे भूले से की, नमाज बातिल है। लेकिन अगर एक रकत में 1 सजदे को कम कर दे भूले से, गलती से, या 1 सजदे को ज्यादा कर दे तो हम नहीं कहेंगे कि रुकन का इजाफा किया या रुकन की कमी की है, नतीजतन उसकी नमाज सही है। तो ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रही थी कि एक ही रकत में 2 सजदे मिलकर रुकन बनते। अच्छा, एक और नुक्ते की वजाहत कर दूं। अगर उसने क्या किया, मसलन वो 2 रकती नमाज पढ़ रही है, पहली रकत में उसने 1 सजदा कम कर दिया भूले से, गलती से, दूसरी रकत में फिर 1 सजदा कम कर दिया भूले से, नमाज बातिल है, 2 सजदे छूटे हैं। क्या हम कहेंगे कि रुकन छूटा है? नहीं, हम नहीं कहेंगे रुकन छूटा है, क्योंकि रुकन एक ही रकत के 2 सजदे होते हैं। इसने एक रकत 2 सजदे नहीं छोड़े, गलती से एक रकत का 1 सजदा छोड़ा, फिर अगली रकत का 1 सजदा छूट गया इससे, तो हम कहेंगे इसकी नमाज बातिल नहीं है, क्योंकि इसने रुकन में कमी नहीं की, भूले से रुकन में कमी नहीं की। अच्छा, अब इसका फरीजा क्या है वो इंशाल्लाह मैं आगे सारे कायदे और सारे फरीजे बताऊंगी कि सजदा छोड़ने पर क्या फरीजा उसके ऊपर लागू हो जाता है फिर नमाज को सही करने के लिए। बहरहाल हमने क्या कहा कि क्या ये जो वाजिबात नमाज है इसमें रुकन और गैर रुकन का फर्क इसलिए बयान किया गया है कि अगर जानबूझकर कोई इनमें कमी या ज्यादती करे तो नमाज बातिल है, चाहे रुकन हो चाहे गैर रुकन हो। लेकिन अगर कोई गलती से भूले से कमी या इजाफा कर दे तो रुकन में नमाज बातिल है, गैर रुकन में नमाज बातिल नहीं है, क्योंकि गलती से उससे हुई है ये भी वाजिब और ये भी वाजिब, सिर्फ इतना सा फर्क है, इसलिए इसको तकसीम किया जाता है रुकन और गैर रुकन में से। बस अगर कोई गलती से, अब इस कायदे को आप पूरी नमाज पे अप्लाई करेंगी कि अगर कोई गलती से हमने कहा गैर रुकन छोड़ दे, क्या मतलब, किसी ने अलहम्द भूल गई, किसी ने अलहम्द छोड़ दी, अलहम्द भूल गई, सही सूरत पढ़ी और रुकू कर दे, नमाज बातिल है? नहीं, क्योंकि गलती से क्या छोड़ा है, गैर रुकन, भूले से गैर रुकन छोड़ा। अच्छा, अगर कोई गलती से सूरत पढ़ना भूल जाए, नमाज बातिल है? नहीं, गलती से क्या छूटा है, गैर रुकन छूटा है। अगर कोई रुकू में जाए और जिक्र करना भूल जाए, सीधी खड़ी हो जाए, रुकू में गई और खड़ी हो गई, फिर से याद हो मैंने तो जिक्र ही नहीं पढ़ा रुकू का, अब दोबारा रुकू में नहीं जाना, क्योंकि दोबारा रुकू में जाएंगे तो रुकन का इजाफा, नमाज बातिल, दोबारा रुकू में नहीं जाना, नमाज सही है।
اچھا کیا چھوٹا ہے اس سے؟ غیر رکن. واجب غیر رکن چھوٹا ہے کیا؟ ذکر. اور کس سے چھوٹا ہے؟ غلطی سے، بھولے سے. نماز کیا ہے؟ صحیح ہے. اسی طرح آپ اس قاعدے کو پوری نماز پہ اپلائی کرتے جائیں. مثلا کسی نے غلطی سے تشہد چھوڑ دی، غلطی سے چھوڑ دی تو نماز باطل نہیں ہے. 2 مرتبہ تشہد پڑھ دی غلطی سے تو نماز باطل نہیں ہے. تو غیر رکن میں اگر غلطی سے کمی یا اضافہ کر دے، کس میں؟ غیر رکن میں، تو نماز باطل نہیں ہے. لیکن رکن میں اگر غلطی سے بھی ہو تو نماز کیا ہے؟ باطل ہے. تو اسی طرح واجبات نماز میں رکن اور غیر رکن کے فرق کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا چھوٹنے پر ہماری نماز باطل ہو جائے گی یا کیا اضافہ کرنے پہ نماز باطل ہو جائے گی، اور کون سی کمی یا اضافہ نماز کو باطل نہیں کرتا. انشاءاللہ اب یہ جو واجبات نماز کی بحث ہے یہ مزید آگے چلے گی اور قاعدے اسی طرح میں ترتیب سے آپ کو لکھواتی رہوں گی. خدا تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.